Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. In previous class we discussed about the phylum Echinodermata. Today we are going to discuss the phylum Hemichordata and then we will discuss about Chordata. Hemichordata is the phylum which was earlier considered as subphylum of Chordata. पहले इसको हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था, बट nowadays it is considered as separate phylum, that is Hemichordata. And do you know why it is? Because Hemichordata is having notochord like structure that is known as stromochord. When I will draw the diagram, I will show you that it is having notochord like structure that is known as stromochord, but that structure is hollow, however notochord is solid. That's why Hemichordata is now considered as separate phylum than Chordata. Clear? If we talk about Hemichordata, then it include worm-like animals. It has worm-like animals. Clear? Now if we talk about its habitat, then these are marine animals, exclusively marine animals. They live in marine sea water. Level of organization, they have organ system level of organization. सभी चीज़ें एडवांस हैं इनके पास, but even then they are not counted in Chordata because of absence of notochord. Symmetry, they have bilateral symmetry. Those students who are thinking that don't know ma'am what are writing, क्या symmetry है, क्या level of organization है, we don't know about it, then please go to first and second class of this chapter, that is basis of classification. Then you will come to know about the basics, that basics of animal kingdom. Then each and every word will be clear from those classes. I'll drop link also of those classes in description box so that you can go easily to those classes. If we talk about coelom, they have very advanced coelom, that is eucoelom. Body plan, they have tube within tube body plans, means complete alimentary canal is present, both mouth and anus, both things are there. Okay, if we talk about germ layers, then they are triploblastic, means they have all three germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Clear? So these are some basics. अब हम इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की और बात करेंगे. You can take screenshot. Done? Now we'll do its diagram. देखते हैं ये कैसा होता है, कहाँ रहता है और क्या खाता पीता है. Suppose this is C. ये C है and ये C की बॉटम है. ठीक है. C की बॉटम में ये इस तरह से बुरो बनाकर रहता है. It live in burrow or you can say tunnel. ये इसकी टनल है. ये इस टनल में रहता है. Like this, it is here. ठीक है. ये कौन है? हेमिकॉर्डेटा का एक मेंबर है जिसका नाम है बेलेनोग्लोसस. It is बेलेनोग्लोसस. Here this is sea water. Now see, ये यहाँ रहता है टनल बना के, below the bottom of the sea में टनल बना के रहता है. Now you think कि मैम ये खाता क्या है? If you don't know, let me tell you that it is filter feeder. ये क्या होता है? फिल्टर फीडर. फिल्टर फीडर मीन्स ये यहाँ से वाटर से और सॉइल को खाता है. वाटर को लेता है अपने अंदर, सॉइल को खाता है और फिर वाटर और सॉइल से फाइटोप्लैंक्टन्स एंड प्रोटोजोन्स को खा जाता है, वाटर और सॉइल को बाहर निकाल देता है. मीन्स फिल्टर करता है चीज़ों को. इट ईट फाइटोप्लैंक्टन्स एंड प्रोटोजोन फ्रॉम वाटर एंड सॉइल, देन रिमूव द वाटर एंड सॉइल. ओके, तो इसको डाइजेशन के लिए भी बाहर नहीं आना पड़ रहा है. इट मीन्स एक्सक्रीशन के लिए तो आता ही होगा बाहर अपनी बुर्रों से. नो, इट डोंट कम फॉर एक्सक्रीशन. ये यहाँ पर ही अपनी एक्सक्रीट कर देता है मटेरियल. इट इज़ वर्म कास्टिंग्स. इट एक्सक्रीट इज मटेरियल हेयर ओनली. इट डजेंट कम आउट फ्रॉम इट्स टनल. बहुत आलसी है, जितना आलसी हो सकता है उतना तुम सोचो. ठीक है. अब ये डाइजेशन के लिए भी बाहर नहीं आ रहा है, एक्सक्रीशन के लिए बाहर नहीं आ रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक? रिप्रोडक्शन के लिए बाहर आता होगा? सी, रिप्रोडक्शन के लिए भी बाहर नहीं आता है. व्हाट इट डू? सपोज ये मेल बेलेनोग्लोसस है, इट रिलीज स्पर्म्स हियर. ये अपने स्पर्म्स यहाँ रिलीज कर देता है इन वाटर. एंड यहाँ पर एक और बुर्रो होगी समहाउ
and this burrow is having another member, that is female Balanoglossus. It also release its egg here. ये अपने egg यहाँ release कर देती हैं. Now fertilization takes place outside the body, inside the water. So this type of fertilization is known as external fertilization. So if I write here that digestion के बारे में लिखें तो लिखेंगे it is filter feeder. It is filter feeder. Respiration के बारे में लिखेंगे तो respiration takes place by the help of gills. It is living in water, so it will have gills. If we talk about circulatory system, then it have open circulatory system. It have open circulatory system. If we talk about its fertilization, then external fertilization is there. External fertilization. And members are dioecious. ये कैसे हैं? Dioecious है. Dioecious means sexes are separate, male individual, female individual are separate. External fertilization. Indirect development. Indirect development means larval stage will be there, that's why development is indirect, and its larva name is Tornaria larva. Tornaria larva. It means ना ये खाने के लिए बाहर आता है, ना पीने के लिए बाहर आता है, ना रेस्पिरेशन के लिए बाहर आता है, ना एक्सक्रीशन के लिए बाहर आता है, ना रिप्रोडक्शन के लिए बाहर आता है. दिस इज टू मच आलसी, बहुत ही लेजी है. ठीक है, तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई. अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर. डन. ओके, नाउ विल डू इट्स स्ट्रक्चर कि इसकी बॉडी कैसी दिखाई देती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं. This is Balanoglossus. It is its proboscis. This is collar, and this is trunk. This structure is, this is trunk, and here some hepatic cicae are present. These are hepatic cicae. The same diagram is given in your NCERT book, but labeling is not done. You can take help of my video to do labeling. This is proboscis. What is proboscis? It help in digging of burrow. ये burrow बनाने में काम करता है. Help to make burrow. Proboscis. Proboscis is having an hollow tube. It is having a hollow tube like structure which is known as stomochord. इसको क्या बोलते हैं? stomochord. जिसको ये माना गया था it is notochord like structure, that's why इसको chordata में काउंट करते थे, बट बाद में फाइंड आउट किया गया कि ये hollow होती है, जबकि notochord कैसी होती है? solid होती है. that's why it has given separate phylum. Collar is having ventral mouth. वेंट्रल साइड पे, कोलार की जो वेंट्रल साइड है, मैंने डोर्सल साइड बनाई है, वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है. दिस इज ट्रंक एंड दिस आर हेपेटिक सिके. दिस इज द डायग्राम ऑफ द एनिमल Balanoglossus. इट इज Balanoglossus. फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए नहीं मैंने लिखा, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर प्रोबोस्किस ग्लैंड होती है. प्रोबोस्किस ग्लैंड. दिस इज फॉर एक्सक्रीशन. आई शुड राइट हियर. Excretion takes place by the help of proboscis gland. It is present on proboscis. Clear? I hope इसका डायग्राम तुम्हें क्लियर है. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें दो ही मेंबर के एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं. वन इज Balanoglossus, second one is Saccoglossus. These two members are of the phylum Hemichordata. Clear? तो Hemichordata phylum complete है. You can take screenshot. Then we'll start the phylum Chordata. Done? Okay. अब हम सबसे एडवांस फाइलम की बात करते हैं. जो फाइलम सबसे एडवांस है वो कौन है? Chordata. Let's start it. Phylum
कॉर्डेटा। ओके, एक डायग्राम बनाती हूँ, उस डायग्राम में हम कॉर्डेटा की लगभग सारी चीज़ें जो है पढ़ लेंगे। ओके, सो वन रोड लाइक स्ट्रक्चर इज हियर like this. One road like structure is here like this, and then here its mouth, and this is its alimentary canal, and here anus is there. Now let's write the name. This is its eye. ये क्या है? Mouth. This is alimentary canal. This is anus, and here some gills are present which are known as pharyngeal gill slits, present in pharynx. pharynx के अंदर present होते हैं. This is nerve cord. This one is notochord. Clear? ये एक कॉर्डेट का डायग्राम है, एक नॉर्मल कॉर्डेट, कोई भी सिंपल कॉर्डेट। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है ये देख लो। आई है इसके पास, माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, एनस है। दिस इज नोटोकॉर्ड, दिस इज नर्वकॉर्ड। वी आर टू फोकस ऑन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। सी इफ वी टॉक अबाउट, अच्छा ये इसकी डोर्सल साइड है, दिस साइड इज डोर्सल साइड एंड दिस साइड इज वेंट्रल साइड। मीन्स जमीन की तरफ है, जो जैसे सांप रेंग कर चलता है, छिपकली है वो दीवार पे चिपकी होती है, जो उनकी बॉटम साइड है ना, दैट इज वेंट्रल साइड, और अपर साइड होती है जो, वो डोर्सल साइड होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन, या यूँ कह लो जिस तरफ धूप लगती है वो डोर्सल साइड है, जिधर धूप नहीं लगती है वो वेंट्रल साइड है। बट इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन की तो सभी साइड पे धूप लगती है, तो हमारी कौन सी डोर्सल और वेंट्रल साइड है? हमारी आगे वाली साइड है वेंट्रल साइड और बैक साइड है डोर्सल साइड। क्लियर? If we talk about nerve cord, here nerve cord is single, hollow, dorsal, ectodermal. You are to learn all these characteristics. nerve cord कैसी है? सिंगल है, डोर्सल साइड पे है, होलो है और एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ है। nerve cord ने फ्यूचर में क्या बनाना है? नर्वस सिस्टम बनाना है। If we talk about notochord, notochord is solid and mesodermal. It is solid and mesodermal. ये अराइज होते हैं mesoderm से। Now see, notochord जो है ये है तो वैसे डोर्सल साइड पे, देखो ध्यान से, नर्व कोड की तो ये वेंट्रल साइड पे है, एलिमेंट्री कैनाल के ये डोर्सल साइड पे है। This type of statements are given in NEET exam that notochord is ventral to nerve cord but dorsal to alimentary canal. Is it correct or not? इस तरह की 4 स्टेटमेंट बना देंगे जो तुम्हें समझनी है। फिर से सुनो, notochord is ventral to nerve cord but dorsal to alimentary canal. Clear? Now notochord is only present in chordates. Only in chordates. ये सिर्फ chordates में ही present होती है, जबकि nerve cord present in both कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट। हमने नॉन कॉर्डेट्स में भी पढ़ा था कि नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं, बट नर्व कोड नर्व कोड नॉन कॉर्डेट में कैसी होती है? कॉर्डेट में ये सिंगल है, नॉन कॉर्डेट में ये डबल है, कॉर्डेट में ये होलो है, नॉन कॉर्डेट में ये सॉलिड है। हेयर इट इज डोर्सल, नॉन कॉर्डेट में ये वेंट्रल है। ठीक है, एकदम अपोजिट चीजें हैं नर्व कोड की इफ यू टॉक अबाउट कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। These pharyngeal gill slits are present in embryonic stage of human. जो ह्यूमन है उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं pharyngeal gill slit। बाकी सभी कॉर्डेट्स के अंदर pharyngeal gill slits प्रेजेंट होते हैं, बट इन ह्यूमन इट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। क्लियर? सो इफ वी राइट हियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें कि किन चीज़ों से हम पहचानेंगे ये कॉर्डेट हैं, तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट,
notochord is present, notochord is present. Second, single hollow dorsal nerve cord is present. अगर इसका अपोजिट लिखो डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो वो नॉन कॉर्डेट आ जाएंगे. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. वन मोर थिंग इज देयर, दिस is known as post anal tail. Post anal tail. So this is also characteristic of chordate, that post anal tail is present. So these are characteristic features of chordate. Whenever question is asked, I don't think you will have any doubt. Okay, you can take screenshot. Done? Now we'll do some differences between chordates and non-chordates. This table is given in your NCERT book also. मैं कुछ नया नहीं लिखने वाली हूँ, बट समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं chordates में और non-chordates में. Chordates and non-chordates. Clear? So first difference is chordates have notochord. Main difference, but they have नो नोटोकॉर्ड. इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है. क्लियर? सेकेंड डिफरेंस, दे हैव सिंगल डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड. सिंगल डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, बट दे हैव डबल वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड. सॉलिड नर्व कॉर्ड. क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस, दे हैव वेंट्रल हार्ट. इनके पास हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल, लाइक वी आर हैविंग वेंट्रल साइड हार्ट, बट दे हैव डोर्सल हार्ट. नेक्स्ट डिफरेंस, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर present, but here these are absent. Okay, so these are some basic differences between chordates and non-chordates. You can take screenshot. This is given in your NCERT book also. Okay, one tail का और difference लिख सकते हो यहाँ पर. They have post anal tail. Post anal tail present, but here post anal tail is absent. Clear? So these are some differences between chordates and non-chordates. Take screenshot. Done? Now we'll write some characteristics. जो हम बेसिक चीज़ें लिखते हैं ना, क्या सिमेट्री है, क्या सिलोम है, वो लिख लेते हैं हम chordates की, कि क्या क्या सिमेट्री है, क्या सिलोम है, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट सिमेट्री ऑफ chordates, कैसी सिमेट्री होगी? अभी तक बहुत लिखते आए हैं, तो कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री. इफ वी टॉक अबाउट जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स तो मोस्ट एडवांस, अब 3 से तो ऊपर क्या ही जाएंगे, तो दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन chordates means they have 3 germ layer. If we talk about coelom, then they have यूसिलोम. ट्रू सिलोम इनके पास प्रेजेंट है. देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इफ वी टॉक अबाउट बॉडी प्लान, देन इट इज ऑल्सो मोस्ट एडवांस बॉडी प्लान, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. क्लियर? सो दीज आर सम बेसिक. आई होप ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और तो हम लिखते नहीं हैं. सिलोम, जर्म लेयर, सिमेट्री, आई होप हो गया. फिर भी एक आध बच्ची है तो सबसे एडवांस है, वही chordata के अंदर आएगी. क्लियर? नाउ दिस chordata फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम. इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, और वो 3 सब फाइलम कौन कौन से हैं?
First one is Urochordata. Urochordata, also known as Tunicata. Second subphylum is Cephalochordata. Cephalochordata. And third one is Vertebrata. Vertebrata. जो कोर्डेटा फाइलम है इसको हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, यूरोकोर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा. यूरोकोर्डेटा को हमने इसलिए नाम दिया, यूरो मीन्स टेल, कि इस सब फाइलम में जो नोटोकोर्ड होती है इट इज जस्ट प्रेजेंट इन टेल, और वो भी लार्वा की ही टेल में होती है और कहीं नोटोकोर्ड नहीं होती है. सिफेलो मीन्स हेड, इसमें हेड से लेके टेल तक, लार्वा से लेके अडल्ट तक नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है सिफेलोकोर्डेटा में. और वर्टिब्रेटा तो महान है, ये तो सबसे एडवांस है, इनमें भी होती है नोटोकोर्ड, लेकिन बाद में वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा. ठीक है, तो इनको डिटेल में हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी. सो टुडे क्लास यू डिस्कस्ड लर्न अबाउट द हेमिकोर्डेटा फाइलम एंड कोर्डेटा फाइलम. In next class we'll discuss about the categories और सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा को हम डिटेल में पढ़ेंगे. साइक्लोस्टोमेटा भी करने की कोशिश करेंगे पूरी. Until then you revise this topic today which you have done. Make notes with the help of NCERT as well as my video. And if you really like my content, my teaching style, then please press like button. For further upcoming videos, please subscribe my channel also. Thank you everyone.